नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास पेशकश चमकते सितारे। तो आज हम आए हैं हैदराबाद के मशहूर स्कूल न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल, जहां पे इन बच्चों ने साइंस के बहुत सारे प्यारे मॉडल्स प्रिपेयर किए हैं। नाज़रीन आइए मुलाकात करते हैं एक और स्टूडेंट से और जानेंगे कि एडुफेयर क्यों कंडक्ट किया जाता है एंड इनका उसके ऊपर क्या ओपिनियन है। सो हाय रेहान। Yes, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? सो जस्ट टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडुफेयर इन योर ओपिनियन? Science fairs are very important because they help us learn complex science-based projects and concepts through model learning, like practical learning. It helps us truly understand how a concept works. We have made many concepts like tree detectors. It counts trees while going in cars and many other options because we think that theoretical learning is good, but practical learning makes us a lot easier to understand and learn what is truly being taught to us. So, science fair in that way, I think it really helps us to understand complex concepts related to science. It helps us take real world problems into practical and different types of demonstrations and truly learn what is how it is working. So that means not only day to day life but complex version of science is also explained very well in edufair. Yes, like different types of technologies. We have also made things like water detectors. We have made how water, like basically, we use water vapor to convert it into water. Basically, things that we see in our textbooks, but we are putting it in a practical form. सो नाज़रीन आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर कंक्लूजन दूँ तो ये बच्चे यहाँ पे एजुफेयर में ना ही सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के रिलेटेड मॉडल्स बल्कि डेली लाइफ एग्जांपल्स को भी लेके इन्होंने मॉडल्स प्रिपेयर किए हैं। वेल आई रियली अप्रिशिएट दैट प्रैक्टिकल अपीयरेंसेस दैट यू हैव प्रेजेंटेड टुडे एंड आई होप यू गाइस कंटिन्यू टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। Yes, sir. My name is Makdum. Today my topic is parts of speech. Parts of speech are categories of words based on their function in a sentences with the 8 main parts: noun, name of a person, place, thing, idea; pronoun, replace noun to avoid repetition; verb, show action or a state of being; adverb, modify verb, adjective or other adverbs; adjective, describe or modify noun and pronoun; preposition, show the relationship between noun and pronoun and other in the sentences; conjunction, connect word, phrases or clauses; interjection, express strong emotion or feeling. Thank you. Today I am going to speak about means of communication. Communication means sharing our ideas and feelings with others. Long ago, people used letters and postcards to send messages. Today, we have many faster ways to communicate. Thank you. My project is preposition. Preposition are some small words. For example, if this monkey come here, he will fart in the tree. If this monkey come, he will near the tree. If this monkey come, he will under the tree. If this monkey come, he will between the tree. If this monkey come, he will down the tree. If this monkey come, he will here. He will over the tree. Thank you. This is my project, sentence making. She is dancing. She is eating. She is singing. She is sleeping. They are dancing. They are eating. They are singing. They are sleeping. Good afternoon, sir. My name is Ram Firdaus. I am studying grade 5th. Today my topic is about homophones. Homophones are words that sounds the same but spelled differently and have different meanings. Examples of homophones are made to create home, women working in houses, meat to meat, flesh of animals, meat to come together, pair, a set of pair to things, pair to cut outer layer. Plain simple, plain surfaces. Today my topic is articles. Articles are the small words that are big helpers for noun. There are only 3 articles: a, an and the. First let's look at a. We use a when the words start with a consonant sound. For example, I see a ship. Next is an. We use an when the words start with a vowel sound. For example, I found an eraser.
Now for the special article, we use the when we are talking about something very specific. For example, please open the window. We use the for the unique things. Thank you. आदाब, मेरा नाम अनम है। मेरा उन्वान है मुहावरे। जैसे दिल में फूल खिलना, मायने खुश होना। बात खैंची, मायने बात के बीच में बोलना। घर के बाहर निकलना, सूरज को दिया दिखाना। मायने अक्लमंद को अक्ल देना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मायने दिल की बात समझ जाना। अपने मन तोता मनाना, मायने अब खुद ही अपनी तारीफ़ करना। शुक्रिया। आदाब, मेरा नाम ज़ैनब फ़ातिमा है। मैं मक्के के बारे में कुछ अल्फाज कहने वाली हूँ। सऊदी अरब के शहर मक्के में एक बहुत खूबसूरत और प्यारा घर है जो सियाह रंग के गिलाफ में लिपटा हुआ है। ये घर अल्लाह ताला का सबसे पहला घर है जिसको अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया। ये 4 दीवारों का एक कमरा है। हज़ारों लोग इधर तवाफ़ करने आते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। शुक्रिया। मेरा विषय आज एक वचन में बहुवचन है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यह एक से ही व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध करता है। उदाहरण लड़का, किताब, नदियाँ। बहुवचन यह एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध करता है। उदाहरण लड़के, किताबें, नदियाँ। मेरे पास कुछ उदाहरण है आपको बताने के लिए। पंखा, पंखे, आंखें, तितली, तितलियाँ, नदी, नदियाँ, माला, मालाएं। धन्यवाद। ఇది నా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ పల్లెటూరు ని చూపిస్తుంది. ఈడ మీరు చూడవచ్చు మట్టి ఇల్లులు, దాని ముందల ముగ్గులు, ఈడ పశువుల కోటం, ఇంకా వ్యవసాయం చేసే పశువులు, ఈడ రహదారి మీద పల్లె ప్రజలు, ఇంకా మంచి నీళ్లు తాగడానికి బావి. ధన్యవాదాలు. Welcome to Measurement Park. In park we have 3 zones in the park: length zone, weight zone and capacity zone. Length is measured in kilometer, meter and kilometer, meter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. Weight is measured in grams and kilograms. 1 kilogram is equal to 1000 gram. Capacity measured in liter and milliliter. 1 liter is equal to 1000 milliliter. Thank you. My project is about food pyramid. A food pyramid is a visual guide showing recommended daily proportions of different food groups for a healthy diet, with the larger section at the bottom representing food to eat the most often. Thank you. आइए आपके सामने पेश करते हैं ये प्ले, जहां आप भी देखेंगे कि झांसी लक्ष्मीबाई का कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल था फ्रीडम फाइटिंग में। नमस्कार सभी को। आज हम रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की यात्रा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम कोई मॉडल नहीं दिखा रहे, बल्कि खुद उन किरदारों के रूप में सामने आए हैं ताकि आप उनके साहस, बलिदान और संघर्ष को और करीब से महसूस कर सके। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। मैं वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक हूँ। मैंने आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा की। मैं रानी लक्ष्मीबाई की सैनिक जूही हूँ। रानी के साथ लड़ना मेरे लिए सम्मान था। हम सब ने मिलकर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं हूँ तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति। हमारी रणनीति और एकता ने 1857 के विद्रोह ने नई शक्ति जगाई। देश के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। रानी साहिबा, अंग्रेजों की सेना हमारी तरफ बढ़ी है, चारों तरफ दुश्मन है। तात्या, जब तक हमारी सांस चलेगी हम झांसी की रक्षा करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। रानी, मैं आपके साथ आखिरी सांस तक लड़ूंगी। आज हम दिखा देंगे कि नारी किसी से कम नहीं। A woman against British Army. Ha ha ha. This is impossible. You people cannot stand against us. Give us the Jhansi and no harm will come to you.
नन्ही सी उम्र में दिखाया साहस और अभिमान, रणभूमि में भी नहीं छोड़ा वीरता का मार, तलवार की गूंज से कांप उठा हर अत्याचार, दुश्मन भी मान गया उनके पराक्रम का प्रहार, मिट्टी के खातिर दे दी अपनी जवानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। मेरा कदीम नाम रिख्ता था, मेरे लफ्ज़ी माना लश्कर के हैं, मैं लश्करी ज़बान हूँ जो बहुत सारे ज़बानों के अल्फाज का मजमा है हर्फ ऐसे तितली के रंग जैसे, कोयल जो कूकती है उर्दू ही बोलती है, अल्फाज में है रवानी दरिया का जैसे पानी, खुशियों की कान है ये मीठी ज़बान है ये शुक्रिया। अली सरदार जाफरी ने क्या खूब कहा है, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू नगमों की जान उर्दू, ये वो ज़बान है जिसको गंगा के जल से ताजगी मिलती है, अवध की ठंडी हवा के झोंके से जिसके दिल की कली खिलती है, जो चूर नगमा के रेगुजारों में कोयल से कूकती है। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू। उर्दू ज़बान की क्या तारीफ़ है, क्या कहूँ, ये मोहब्बतों की ज़बान है, इज़्ज़त अज़मत की ज़बान है, शान व शजात की ज़बान है। इसमें इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने की हिम्मत थी और अपने हक़ के लिए लड़ने की ताकत है। आदाब, मेरा नाम आबिदा फातिमा, मैं जमात शिशम की तालिबा हूँ। मेरा उन्वान है मिली नगमा। तू सलामत वतन ताफ़ियामत वतन मांगी मिलके जो भी उस दी के वतन, कितनी नस्लों की फ़रबानियों से मिला ए वतन तू हमारी वफ़ा का सला, चाँद चमका रहा तू रोशन सितारा हुआ, ए ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ, तू सलामत वतन ताफ़ियामत वतन मांगी मिलके जो भी उस दी के वतन। शुक्रिया। मैं माँ के ऊपर चंद अशार पेश करता हूँ। कोई भी अच्छे को बुरा नहीं बताता है, कोई भी अच्छे को बुरा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है, कल अपने आप को देखा था माँ के आँखों में, ऐना हमें बुरा नहीं बताता है, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, अगर गुस्से में हो तो रो देती है, ज़िंदगी में बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया जब माँ ने तो आसमान छुआ, मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, माँ के आंखें चूम लो ज़िंदगी बन जाएगी। हम मुहावरे और उनका मतलब बयान कर रहे हैं। सर आँखों पर बिठाना, हम वो लोग होते हैं जो मेहमानों को सर आँखों पर बिठाते हैं। सर चढ़ जाना, ज़्यादा लाड़ प्यार से बच्चे माँ बाप के सर चढ़ जाते हैं। नाकबू चराना, हाशिर को ज़रा सा क्या डांटा, वो नाकबू चरा कर बैठ गया। उल्टी गंगा बह जाना, जनाब आपने चोरों को सरदारी देकर उल्टी गंगा ही बहा दी। दौड़ धूप करना, मेहनत करना। मैं यहाँ पर आया था जो एजुकेशन फेयर देखने के लिए, तो माशाल्लाह से जो है इतने बेहतरीन चीज़ें देखने को मिली है मेरे को आज यहाँ पर, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उमर सर का, जो एक डायनामिक लीडरशिप के अंडर जो है इतना अच्छा काम हुआ है, बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिला है और काफ़ी जो है टेक्नोलॉजी के बारे में वो लोग को पता चला है, और हम पेरेंट्स को भी जो है काफ़ी चीज़ें मालूमात हुई हैं। दोनों उलूम को फोकस कर रहे हैं उमर सर, दुनियावी तालीम को भी कर रहे हैं, प्रेजेंट अब जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है उन तमाम एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, दीनी तालीम को भी तवज्जो दे रहे हैं, उर्दू तालीम को भी तवज्जो दे रहे हैं, और दुनियावी जितने उलूम हैं उन तमाम पे भी तवज्जो दे रहे हैं। जो एग्ज़िबिशन यहाँ पे हुआ है न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल में, बहुत ही खूब, बच्चों ने इतनी मेहनत लगाई है इसमें, जो देखने को मिल रहा है, जो स्कूल में जो सिखाया जा रहा है, हर चीज़ यहाँ पे महसूस, हर प्रोजेक्ट में महसूस हो रहा है। द क्यूरियोसिटी, इवन द डिसिप्लिन वे में जो हो रहा है, everything, I feel very proud as a mother that my child is studying here in New Era International School. I hope that this is one of the best school we had in Saidabad colony, and here the education is very good, so that the child is from a small PP1 nursery to higher grades, the children, they are doing themselves on their own things, everything they are doing, and the teachers are motivating in such a way that each child is having fear that I should complete this task. In this way, the cooperation of the teacher and the students' work is very good, well in the school. Here, we try to encourage our children to come up with their own activity and creativity. Every child is unique, and here we are nurture them to bring up their hidden talent and express themselves. Different child has a different ability, and they are expressed in different ways. Here in our school, we try to learn through different methods, like playway method is used in the primary school, whereas in the high school we use the practical method as well as the hands-on activities. Hello, I Nazima Nikhat, coordinator of primary section. In our school, creativity is when you think differently. We believe in playway learning method through activities and game.
We do more than hundreds of activities every year. I don't think any other school conducting these kinds of activities. नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड चमकते सितारे में, जहां हम आए थे न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल और हमने यहाँ के स्टूडेंट्स से मुलाकात की और ये देखा कि कितने अच्छे साइंस के मॉडल्स इन लोगों ने प्रिपेयर किए और साथ ही में कितने क्रिएटिव एंड इन्फॉर्मेटिव मॉडल्स भी यहाँ पे उन्होंने प्रिपेयर किए थे। पैट्रियाटिज़म के यहाँ के स्टूडेंट्स में कितने मायने हैं और साथ ही में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम भी इतनी अच्छे से दी जाती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक बच्चे में इस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टडीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपना ध्यान जो है मिक्स कर ले। एंड आजकल के बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो बाहरी दुनिया को भी अभी से काफ़ी अच्छे से समझे। एंड यहाँ के स्टूडेंट्स को जूडो के ज़रिए सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है और यहाँ तक कि इतने अच्छे क्रिएटिव माइंडसेट के साथ कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है कि ये बच्चे आउट ऑफ करेज किसी से भी बिना डरे बिना हिचकिचाए बात कर सकते हैं। तो एक स्कूल की ये खासियत ही ये होती है कि कम्युनिकेशन स्किल सिखाना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बैलेंस करना एंड स्टडीज़ को बैलेंस करना किस तरह से एक बच्चे को सिखाया जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए चमकते और सितारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और हाँ, याद रखिए मुनसिफ टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।